Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter partnership accounts under Unit 4, Chapter 4. It's a chapter for intermediate second year students for State Board of Telangana. In this video, we'll be discussing partnership deed or partnership agreement. Page number 136, 137. You can find this topic partnership deed, partnership agreement in the reader in page number 136 and 137. So what is partnership deed? Partnership comes into existence not from status but from contract. जैसा कि जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबरशिप कैसा मिलती? बाय बर्थ इन जॉइंट हिंदू फैमिली यू विल बी गेटिंग ए मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. बट वेराज इन पार्टनरशिप मेंबरशिप इज नॉट बाय स्टेटस बट बाय कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे पार्टनर एक बंदा दूसरे बंदे से अग्रीमेंट करा तो वो दूसरे बंदे का पार्टनर होता है. यहाँ पे जैसा जॉइंट हिंदू फैमिली में पैदाइश से जो है ना आपको मेंबरशिप मिल जा रही, यहाँ पे बाय स्टेटस आपको मेंबरशिप नहीं मिलती. मेंबरशिप इज एक्वायर्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज विच इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट which may be either oral or written. तो ये जो agreement है partners में वो agreement oral भी रह सकता है या written भी रह सकता है. What is an oral agreement? It can be just expressed in terms of words. सिर्फ मुंह ज़बानी बोल दिए कि आप ये काम करिए मैं ये काम करूँगा, आप इतना पैसा लाइए मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा, ये oral agreement है. फिर रिटर्न एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? हर चीज़ लिखाई पढ़ाई में रहेंगी कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करिए मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा, आप ये काम करिए मैं ये काम करूँगा. सो ये रिटर्न एग्रीमेंट है. So coming to partnership, an oral agreement is also valid, a written agreement is also valid. तो partnership में oral agreement भी चलता, written agreement भी चलता. To avoid any misunderstanding among partners, आगे जाके partners में ना इत्तेफाकी नहीं हुए जैसा, it is desirable to have a written agreement. तो बेहतर क्या रहता? आगे जाके अगर partners में कुछ झगड़े हो गए तो solve करने के लिए अपने पास क्या रहता? Written agreement as an evidence produce कर सकते. So an oral agreement among partnership is also valid. A written agreement among partnership is also valid, but it is preferable, it is desirable to have a written agreement among partners. So the written agreement signed by all partners is called as partnership deed. तो जो कोई भी agreement जो लिखा हुआ रहता उस पे हर पार्टनर साइन करेंगे. क्यों साइन करेंगे? It is an acknowledgement that he has gone through all the provisions written in the partnership deed and he is agreeing on the terms and conditions which are specified in the partnership deed. So that written agreement which is signed by all the partners is called as partnership deed. तो partnership deed क्या है? जो partners में आपस में जो written agreement रहता है जिस पे हर partner sign करते वो partnership deed है. So the written agreement signed by all the partners is called as partnership deed or agreement. The terms and conditions contained in such agreement are known as articles of partnership. तो ये partnership deed में जो भी terms and conditions लिखे हुए रहेंगे हम उसको क्या बोलेंगे? Articles of partnership बोलेंगे. तो partnership deed में आखिर क्या लिखा हुआ रहेगा? So the written agreement can contain as much or as little as partners want. तो अब ये पार्टनर्स के इख्तियार की बात है, वो लोग जितने चाहे उतने प्रोविजंस इंक्लूड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा चाहे उतने ज़्यादा प्रोविजंस इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे कम से कम प्रोविजंस इंक्लूड कर सकते हैं. तो दे कैन इंक्लूड एज मच प्रोविजंस एज दे वांट और एज लिटिल प्रोविजंस एज दे वांट. बट द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट इट मस्ट कंटेन. तो पार्टनरशिप डीड में क्या रहना ये कानून नहीं बता रहा. पार्टनर्स के अपने इख्तियार की बात है, चाहे ज़्यादा प्रोविजंस रख ले या फिर कम प्रोविजंस रख ले. बट the usual contents of partnership deed are listed as under. अमूमन नॉर्मली हर पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें कैसा भी देखने को मिलते. इससे ज़्यादा कोई प्रोविजन रखना है तो पार्टनर्स रख सकते या इसमें से कोई प्रोविजंस कम करना है वो लोग अपने हिसाब से कम कर ले सकते. बट नॉर्मली एक नॉर्मल पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कॉन्टेंट्स रहते हैं दैट विल बी डिस्कसिंग. सो द यूजुअल कॉन्टेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर लिस्टेड एज अंडर. फर्स्ट, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो वो लोगों के बिजनेस का नाम क्या है वो लिखा हुआ रहेगा. नेक्स्ट, नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स. पूरे पार्टनर्स के नाम, उन लोगों के एड्रेस और उन लोगों का ऑक्यूपेशन लिखा हुआ रहेगा. नेक्स्ट, नेचर, ऑब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है और बिजनेस का ड्यूरेशन इफ डिसाइडेड कि वो पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या फिर वो लोग अगर किस हद तक कितने साल तक पार्टनरशिप में रहना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर वो लोग डिसाइड करें सो इट शुड बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप deed. Next, amount of capital to be contributed by each partner. तो यहाँ पे जितने भी लोग पार्टनर्स हैं कौन से पार्टनर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी पार्टनरशिप डीड में आप स्पेसिफाई करना. नेक्स्ट, व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस. देन व्हाट आर ड्रॉइंग्स? द अमाउंट विच ए पार्टनर इज अलाउड टू विथड्रॉ फॉर हिज
पर्सनल यूज। तो अगर कोई पार्टनर पैसे बिजनेस से विथड्रॉ भी कर सकते हैं तो कितने विथड्रॉ कर सकते हैं, इट शुड आल्सो बी स्पेसिफाइड। सो ड्राइंग्स इफ एनी अलाउड फॉर प्राइवेट पर्पसेस। अगर कोई पार्टनर अपने कुछ जरूरी कामों के लिए, जाती कामों के लिए बिजनेस से, पार्टनरशिप बिजनेस से पैसा निकालना चाह रहा, तो कौन सा पार्टनर कितने पैसे निकाल सकता, इवन दैट शुड बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो एवरी पार्टनर शुड अग्री विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, कि प्रॉफिट्स जब आएंगे, बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस इज carried out to make profits and these profits should be shared by all the partners। तो प्रॉफिट्स जब बांटेंगे तब ये लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहना कि पहले पार्टनर को ज़्यादा शेयर मिलेगा, दूसरे पार्टनर को कम शेयर मिलेगा, या जो ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम पैसे लगा रहे हैं उनको कम पैसा मिलेगा, या जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। एज ही इज पुटिंग मोर एफर्ट्स ही शुड गेट मोर प्रॉफिट्स, एज ही इज पुटिंग लेस एफर्ट्स ही शुड गेट लेस प्रॉफिट। ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे, जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज विल ऑल्सो बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आप कैपिटल, जो पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर बिजनेस फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, और पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फॉर्म में से पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉइंग्स, इस पे पार्टनरशिप फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या पे करेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करा हुआ रहना। नेक्स्ट, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के हुकूक क्या है, पार्टनर्स के ड्यूटी क्या है, जिम्मेदारियां क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल सकते हैं आप, एंड लायबिलिटीज, पार्टनर्स के खर्चे क्या रहेंगे। मतलब एवरी पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट डन बाय हिम। जो भी काम वो बंदा करेगा देन ही शुड आल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the task. Next, method of valuation of goodwill and revaluation of assets and liabilities in case of admission, retirement or death of existing partner। अगर कोई नया बंदा बिजनेस में आ रहा, हम उसको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलेंगे, या हैसो पार्टनर्स में से कोई बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा, हम उसको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बोलेंगे, या फिर कोइंसिडेंटली किसी की डेथ हो जा रही, उसको हम डेथ ऑफ ए पार्टनर बोलेंगे। सो व्हाट एवर बी द केस, बी इट ए केस ऑफ एडमिशन, बी इट ए केस ऑफ रिटायरमेंट और बी इट ए केस ऑफ डेथ, ये सूरत हाल में आप गुडविल का वैल्यूएशन कैसा करेंगे, इवन दैट शुड बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, व्हेन एंड हाउ ए न्यू पार्टनर इज टू बी एडमिटेड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इज टू बी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस। अगर आप नए बंदे को लेना चाह रहे तो कब ले सकते, कैसा बिजनेस में ले सकते, अगर है सो पार्टनर्स कोई बिजनेस छोड़ के जाना चाह रहे तो वो लोग कैसा जा सकते, दैट शुड बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। तो वो लोग अपना हिसाब किताब कैसा रखेंगे और उसका ऑडिट कैसा कराएंगे, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहना। नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट टू रिटायर्ड पार्टनर शेयर। जो बंदा बिजनेस में से जा रहा वो बंदे का हिसाब किताब करके दैट हिज अमाउंट शुड बी कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज रिटायर्ड पार्टनर्स शेयर, इवन दैट शुड बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। सो मोड ऑफ पेमेंट टू रिटायर्ड पार्टनर शेयर। नेक्स्ट, कमिंग टू मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर आप बिजनेस बंद करना चाह रहे, इट विल बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ऐसी सूरत हाल में आप पूरे अकाउंट्स कैसा सेटल करेंगे, बाहर से जो खर्चे लिए हुए हैं वो लायबिलिटीज कैसा पे ऑफ करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल कैसा पे ऑफ रीपे करेंगे, ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए रहना। नेक्स्ट, सैलरी, कमीशन और एनी काइंड ऑफ रिम्यूनरेशन टू बी पेड टू मैनेजिंग पार्टनर इफ एनी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है या फिर किसी पार्टनर को सैलरी के अलावा कमीशन देना है या फिर सिर्फ कमीशन देना है या फिर कोई और रेम्यूनरेशन देना है, तो वो कितना देंगे और किसको देंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस टू पे सैलरी टू ऑल द पार्टनर्स और टू पे कमीशन टू ऑल द पार्टनर्स। कोई भी रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को मिल सकता है, किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल ABC में A को सैलरी दे सकते हैं आप, B और C को नहीं दे सकते। B को कमीशन मिल रहा, A और C को कमीशन मिलना जरूरी नहीं है। सो सैलरी और कमीशन कैन बी पेड टू एनी ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में लोन प्रोवाइड कर रहे, सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कैपिटल प्रोवाइड कर रहे तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे, ड्रॉइंग्स ले रहे तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे। उसी तरह इफ ए पार्टनर हैज गिवन ए लोन टू द बिजनेस देन व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ लोन टू बी पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन हिज लोन शुड बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, द प्रोविजंस फॉर आर्बिट्रेशन इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स में आपस में कुछ झगड़े हो गए तो हाउ डू यू रिजॉल्व, इवन दिस शुड बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप डीड। हर पार्टनरशिप डीड में ये कंटेंट्स तो रहेंगे। अब इसके अलावा कुछ और ऐड करना है तो पार्टनर्स अपनी रजामंदी, अपनी कॉन्सेंट से ऐड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं। Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends.
relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.